चलो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड ऑल से शुरू करते हैं। सिंपल है ये वाला कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये समझाता हूं। अगेन 100% कंसंट्रेशन फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। रिटर्न में क्या दूंगा मैं आपको, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व कर लेना, वो सॉल्व हो जाएगा। डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों सेम चीज है। जब गवर्नमेंट $1 को 50 एग्जाम्पल से 60 कर देगा तो डीवैल्यूएशन कहते हैं। किस टाइप का एक्सचेंज रेट सिस्टम है उस कंट्री में। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है डॉलर टू रुपी एंड रुपी टू डॉलर कन्वर्जन, in that case it is known as devaluation. If the market is deciding on the basis of demand and supply what should be the value of dollar or rupee, that is known as depreciation. Simple terms, जब भी 50 से 60, 50 to 60, 60 to 80, 80 to 85, 85 to 90, जब भी रुपी की वैल्यू in terms of dollar or any foreign currency decreases, it is known as depreciation. I hope this thing is clear. Now let's start first. What all are the causes? What are the causes of currency depreciation? ये simple है. This one is very very simple. First क्या होगा कि whenever we have an outflow, when I say currency depreciation means what? Means the supply of dollar has increased. Sorry, it has decreased or the supply of rupee has increased. तभी तो $1 which was earlier 50 now became 60. So either the supply of dollar decreased or the supply of rupee has increased. It is known as depreciation. Now we will see, we'll go one by one about the causes of currency depreciation. First है outflow of FDI. पहले जो पैसा इकोनॉमी में था, जो डॉलर था, वो चला गया, तो डॉलर की शॉर्टेज हो गई, हो गया डेप्रिसिएशन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है भैया, कि outflow of FDI and FII will lead to depreciation. This is fine. Second, declining economic growth rate or economic instability. We know कि जैसे ही political instability आता है, economic growth rate in any economy decreases. Foreign investors will have less trust on the economy. Foreign credit rating agencies, they will decrease the rating of इंडिया. सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज विल डिक्रीज द रेटिंग ऑफ इंडिया, जैसे अभी चाइना की डिक्रीज हुई है एटसेट्रा. 2008 क्राइसिस के बाद यूएसए का हुआ था, इंडिया का हुआ था उस टाइम पे. सो इफ देयर इज डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. व्हाई? बिकॉज डॉलर फ्रॉम द इकोनॉमी अगेन विल गो आउट, बिकॉज whatever investment which has been done in that economy, they will flight, उसको बोलते हैं capital flight. It will go out of India and they will invest in USA because USA is considered as the safe house. वहां जाके आप पैसा लगा लो, कम से कम वो डूबेगा नहीं. So one more cause of depreciation of currency as we have seen is declining economic growth or economic instability. Third है high fiscal deficit. अगर high fiscal deficit है, इसका मतलब government is borrowing a lot. If government is borrowing a lot, government अपने पास तो वो पैसा रखेगा नहीं, because government is borrowing from the market. It means government needs to give interest rate against that borrowing. If government is borrowing from the market, government must be spending it somewhere. So if government is spending in subsidies, etc., and all these things will increase the supply of rupee. मैंने बोला था currency depreciation के दो ही cause हैं, या तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाए या रुपी की सप्लाई बढ़ जाए. क्या इस केस में रुपी की सप्लाई बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट पंप इन कर रहा है उस रुपी को इकोनॉमी में, तभी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है. फिस्कल डेफिसिट वी नो इज नोन एज बोरोइंग्स. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरी क्लासेस एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की, being coming from an software engineer and all, इको पढ़ा तो मैं बहुत अच्छा दूंगा, बस आपको मुझे 100% अपना कंसंट्रेशन देना पड़ेगा. लास्ट में अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने डाउट्स लिख लो, लास्ट में हम आपके सारे डाउट्स ले लेंगे. नेक्स्ट है लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू ग्लोबल रेट्स. तो होगा क्या कि अगर आप कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं
तो जो इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में आया है वो चला जाएगा, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी में आपके पास पैसा डाल रहा है, देयर एक्सपेक्टेशन वुड बी कि भाई आप ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराओ. इफ यू आर नॉट एबल टू गिव मोर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, वो यहां से निकल के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर देगा. आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही लोअर इंटरेस्ट रेट यहां से जाता है, यूएस में जैसे ही इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा एंड ऑल अगर ये होता है तो आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दिस विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. डॉलर यहां से निकल जाएगा, डॉलर चला जाएगा यूएसए में. फिर है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अपने को पता ही है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रुपी बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है, रुपी सीधा ही बढ़ रहा है तो अपने आप ही डेप्रिसिएशन होगा. डॉलर की सप्लाई चाहे कुछ भी हो, अगर रुपी बढ़ जाएगा तो $1 वाज इक्वल टू 50 रुपीज, अब रुपी ही 60 हो गया है तो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज. तो यहां से तो स्ट्रेट अवे आपको दिख रहा है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपन ने देख ली है. लास्ट है हाई करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, सीएडी बढ़ गया, अपना एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, तो नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है. क्योंकि जब भी मैं एज ए कंट्री, ये इकोनॉमी है, यहां मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ आइटम्स में रिटर्न में मुझे देना पड़ता है डॉलर, और जब भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो मुझे यहां रिटर्न में मिलता है डॉलर. तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है मतलब मेरा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब जो डॉलर आ रहा है वो कम हो रहा है और जो डॉलर जा रहा है वो बढ़ रहा है, मतलब सप्लाई ऑफ डॉलर जो था वो थोड़ा सा कम हो गया. और सप्लाई अगर कम हो रहा है तो करेंसी डेप्रिशिएट. ये सारे हमारे कॉजेज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन हो गए. आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि YouTube पे 7 या 8 सेकंड का गैप रहता है जो मैं बोलता हूं और जब आपके पास वो आता है. इसीलिए आपके सारे डाउट्स में लास्ट में ले पाऊंगा, नहीं तो फ्लो में थोड़ा ब्रेक आ जाएगा. बाकी जब हमारे पोर्टल में हम देते हैं तो वहां सिर्फ 3 सेकंड का गैप है, तो वहां पे अपन रियल टाइम में सॉल्व कर लेंगे. ये बहुत ही बढ़िया है. देखो भाई, इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन. इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे कि भाई करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या पड़ता है. देख लेते हैं भाई. $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज है. हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो चुका है, हम ये मान रहे हैं. तो अब करेंसी 50 की जगह पे हो गया है 60. मैं आउट ऑफ इंडिया, अज्यूम करो दिस इज इंडिया, सॉरी मैप ऐसा नहीं है बट ठीक है, अपन खंड भारत बना के ऐसा मैप बनाएंगे, तुम वेट करो थोड़ा सा. हम यहां से एक पेन एक्सपोर्ट करते थे, उस पेन का प्राइस था ₹10. इसका मतलब जब मैं पेन एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मेरी इकोनॉमी में डॉलर आ रहा है ना, मैं डॉलर लूंगा पेन दूंगा. अगर पेन का प्राइस है 10 रुपीज और $1 था 50 रुपीज पहले, तो मैं पहले 5 पेन दे रहा था. समझ में आ रहा है? $1 was 50 rupees, price of 1 pen is 10 rupees. So earlier I was able to sell or provide 5 pen. I was able to export 5 pen in $1. करेंसी हो गया डेप्रिशिएट, 60 हो गया, प्राइस सेम है, तो नाउ आई कैन गिव 6 पेन इन $1. तो जिसके पास डॉलर था वो तो खुश हो जाएगा ना, बिकॉज पहले उसको 5 पेन मिल रहे थे, अब उसको 6 पेन मिल रहे हैं, तो दे विल इंक्रीज बाय मोर एंड मोर पेन फ्रॉम इंडिया. इसका मतलब जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है एक्सपोर्ट बढ़ जाता है. और इसको उल्टा कर दो, बस याद ही कर लो सिर्फ कि जब करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? याद करने के लिए चाइना पे एलिगेशन लगते हैं कि उसने इंटेंशनली अपनी करेंसी डेप्रिशिएट कर रखी है. क्यों कर रखी है या डिवैल्यू कर रखी है? क्यों कर रखी है? ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े. एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता चला जाएगा. यहां तक समझ में आ गया? आई थिंक ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया होगा.
कि एक्सपोर्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और इंपोर्टर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट, ये फाइन है। एक्सपोर्टर्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, इंपोर्टर्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, यहां तक ठीक है। अब भाई अगर मेरा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है तो मेरा करंट अकाउंट या ट्रेड बैलेंस पे तो पॉजिटिव ही इंपैक्ट पड़ना चाहिए ना, नहीं। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि अब इंडिया अलग हो जाता है और बाकी कंट्रीज या इकोनॉमिक्स अलग हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बच्चा लोग कि इंडिया का जो बास्केट है ना, जो हम इंपोर्ट बास्केट करते हैं, वो भाई इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेट टू इट, अपन को बाय करना ही करना है। अगर क्रूड ऑयल 1 बैरल की कॉस्ट $40 है, हम तब भी बाय करेंगे, और $110 है तब भी बाय करेंगे, बिकॉज उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम $40 पे बाय कर रहे थे तो सपोज करो हम टोटल 5 बैरल्स इंपोर्ट करते थे, तो मतलब $200 का सामान हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब आइडल क्या होना चाहिए कि अगर ये प्राइस 40 की जगह 100 हो जाए तो ये 5 कम हो जाना चाहिए, बिकॉज तब हम डोमेस्टिक वाले आइटम्स पे ही खर्च कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, बिकॉज डोमेस्टिक में अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम? तब भी हम बाय कर रहे होंगे, तो तब 100 into 5, तब हम $500 का इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो मतलब वो कम नहीं हुआ। इंडिया के केस में अगर करेंसी डेप्रिशिएट भी होता है तब भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही जाते हैं, तब भी ट्रेड डेफिसिट होता है। यही डिफरेंस है और यही कंसेप्ट आपको समझना है कि जब क्वेश्चन में पूछा हो इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और जब क्वेश्चन में पूछा हो विदाउट मेंशनिंग इंडियन इकोनॉमी। विदाउट मेंशनिंग में ये आंसर है पॉजिटिव, और अगर इंडियन इकोनॉमी पूछा है तो ये आंसर है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। पॉजिटिव इफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस मोर देन इंपोर्ट्स, तो पॉजिटिव होगा ही ना। करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर कंट्री इंपोर्ट डिपेंडेंट है लाइक इंडिया तो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। अब इससे रिलेटेड एक मेरा आपको होमवर्क है कि आपको पढ़ना है जे कर्व। तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले जे कर्व क्या होता है ये पढ़ के आएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, सॉरी, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा? फॉरेन वैल्यू मतलब जो रुपी था, $1 के इक्विवेलेंट रुपी था, तो भाई वो तो कम ही हो गया, तभी तो डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो फॉरेन वैल्यू ऑफ हमारी करेंसी विल डिक्रीज, सिंपल है। फिर फॉरेक्स रिजर्व, ये अपन ने देख लिया कि भाई अगर अपने को ट्रेड बैलेंस इंडिया में, अगेन इंडिया में नेगेटिव हो रहा है तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है। यहां सिर्फ आपको मिला नेगेटिव, वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जब हम कंटेंट बनाते हैं, टीम बनाती है, मैं रिव्यू करता हूं, कुछ कुछ चीजें मिस होती हैं, बट जब आप पढ़ाते हो तो आप पूरे एफर्ट से पढ़ाते हो। आई डोंट वांट कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक मेरे बच्चों का छूटे। तो यहां आप देखोगे कि नेगेटिव है इंडिया के केस में, बट इकोनॉमिक्स अगर जनरल इकोनॉमी या एनी अदर कंट्री होगा तो वहां पॉजिटिव है भाई, याद रखना। आप लिख लो इसको साथ में कि वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज वहां ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव जा रहा है तो मेरा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, कम नहीं होगा वहां पे। फिर है फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट। भाई फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट ना अनसर्टेन है। रिवर्स जो है वो आप याद रखना कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इसको याद रखना। गवर्नमेंट ने बोरो किया, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट बोरो करेगा, गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, मनी की सप्लाई, रुपी की सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी कि क्या है। और एक्सपोर्ट जो है अगर मेरा कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। हमेशा दिस इज 1 to 1।
अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, बट वेदर रिवर्स इज 1 to 1, नो। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा क्या? नहीं पकता। क्यों नहीं पता? बिकॉज फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग, और बोरोइंग जो है गवर्नमेंट मल्टीपल रीजंस की वजह से करता है। अगर नया इन्वेस्टमेंट है, नया सब्सिडी है, तब भी बोरो कर लेगा, इररिस्पेक्टिव करंट अकाउंट डेफिसिट है या नहीं है। अगर फिस्कल बोरोइंग है या फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट कब करेगा? अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, अगर टैक्स नहीं आ रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है बोरो करने का। तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट या रुपी डेप्रिसिएशन से ये होगा? क्या पता नहीं, बट क्या बोरोइंग से होगा? हाँ, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। यहां आपको अनसर्टेन रखना है, पता नहीं है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फ्लेशन वाला। नेक्स्ट 1 मिनट आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। अच्छा कलर नहीं है, चलो ये आया इकोनॉमी। इकोनॉमी में अपन वही पेन बना रहे हैं, अपना तो एक ही बिजनेस है तब से। $1 है 50 रुपीज, और अपन पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितने पेन अपन एक्सपोर्ट कर पाते हैं? 5 पेन। अब इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। अब ये 10 रुपए का जो पेन था, अब इसकी कॉस्ट हो गई 12 रुपए। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, when too much money is chasing too few goods, when the prices of the goods and services in general increases, उसको कहते हैं अपन इन्फ्लेशन। तो 12 रुपए हो गया। अब 50 रुपए में कितने 12 रुपए के पेन आप ले सकते हो? अब आप 4 ही ले सकते हो बस, अब 4 और एक ढक्कन ले लोगे बस, और क्या करोगे? तो 50 divided by 12 is 4 point something. It means now in $1 you can only buy 4 पेन। अब आप 5 की जगह 4 पेन दोगे। तो क्या फॉरेन में जो ये बंदा बैठा है, जो पहले आपसे पेन ले रहा था, आपसे पेन लेगा? नहीं, वो डाइवर्सिफाई करके किसी और कंट्री से ले लेगा जहां पे इन्फ्लेशन नहीं है। सो दिस इज वेयर इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इन एन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस और इंपोर्ट इंक्रीजेस। बिकॉज पहले हो सकता है एक पेन 11 रुपए में आप इंपोर्ट कर सकते थे, बट बिकॉज द डोमेस्टिक प्राइस वाज 10 रुपीज विच इज मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपेरिजन टू इंपोर्ट ऑफ अ पेन, उस प्राइस वाज 11 रुपीज। तो अब पहले आप 11 रुपए का पेन परचेज नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन आ गया, अब 12 रुपए का पेन हो गया, तो अब आप ये बाय प्रोड्यूस नहीं करोगे और बाय नहीं करोगे डोमेस्टिक वाला पेन, बाहर वाला पेन लोगे, बिकॉज वो चीप रेट पे आपको मिल रहा है। तो इससे ये शो होता है कि इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी से एक्सपोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट कम होगा, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब डॉलर की सप्लाई कम हो गई, हो गया डेप्रिसिएशन, हो गया एक बात। समझ में आ रहा है? इसी में ही हम ऐड करेंगे, या इसका होमवर्क में डालो आप, कि साथ में डेप्रिसिएशन भी हो जाए। इंटरेस्टिंग है, चलो पढ़ लेते हैं। ये तो चल ही रहा है, साथ साथ में डेप्रिसिएशन, ये बन जाए 60। अब बताओ कितने पेन आप करेंसी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी और इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ जाए, अब कितने पेन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? यहां लिख देना, कमेंट्स में लिख देना कितने पेन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब आप लिखोगे तो समझोगे दैट द नेट इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इज डिपेंडेंट अपॉन 2 थिंग्स, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इन फॉरेन इकोनॉमी ऑल्सो, एंड सेकेंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो बताता है। 60 होते ही पहले भी 5 पेन थे, अब भी 5 पेन है, even though the prices increase, but now even after inflation because the currency depreciated, तो आपका नेट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, वही 5 पेन दोगे आप। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नेगेटिव पड़ गया, अपन ने इस पे कंसेप्ट होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में। क्यों? बिकॉज ऑल्दो इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है, बट स्टिल आप महंगी चीजें खरीद रहे हो, बिकॉज आपका जो इंपोर्ट बास्केट है वो इनइलास्टिक, आपको परचेज करना ही पड़ रहा है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो अगर आप इफ यू आर फोर्स्ड टू इंपोर्ट द कॉस्टलियर गुड्स एज वेल, तो वो महंगाई कर रहा है। आप डॉलर के आप क्रूड ऑयल लेके आ रहे हो जो पहले $40 था, आप $100 है, उसी क्रूड ऑयल को आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है।
फाइनल एमआरपी ऑफ दोज गुड्स बढ़ रहा है, बट स्टिल आप इंपोर्ट कर रहे हो बिकॉज आपको उसका चीप अल्टरनेटिव, चीप सब्सटीट्यूट डोमेस्टिकली नहीं मिल रहा है। ये होगा इसमें। नेक्स्ट एट्थ आता है हमारा इंटरेस्ट रेट। इट मे राइज ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन। अपने को पता है जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है तो आरबीआई सबसे पहले क्या करता है? रेपो रेट बढ़ाता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। आप जब पढ़ते हो कि अरे सर ये ना इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आता, पढ़ लेते हैं भैया इंटरेस्ट रेट क्या होता है। आप कोई भी इंटरेस्ट रेट बोलो मतलब उसका सेम ही है। क्यों सेम है? देखो, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो, उसके अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट रेट ले रहे हो आप, है ना? यू डिमांड इट। whatever money the households deposit or the corporate deposits in terms of savings account or in terms of FD, you demand an interest rate in return. So bank जो है, सपोज करो ये SBI है, SBI needs to pay an interest rate to you. Then SBI keep its commission and then SBI lends it to somebody, किसी corporate को लोन दे देता है वो, और corporate उसको interest rate देता है। 1-to-1 सिंपल सी चीज है, गांठ मान लो। इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जिस रेट पे एसबीआई लोन दे रहा है, इसका मतलब है जिस रेट पे एसबीआई को लोन मिल रहा था वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में तब यू विल डिमांड मोर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम एसबीआई। जो पैसा आप 100 रुपीज का लोन दे रहे थे एट द रेट ऑफ 10%, क्यों दे रहे थे आप? बिकॉज 100 रुपीज में मैक्सिमम रिटर्न सेविंग्स या एफडी दे रहा था। If the interest rate of FD and savings rate become less, you will start investing in some other alternate. फिर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे, आप गोल्ड में पैसा लगाओगे, आप किसी और जगह पैसा लगाओगे जो आपको ज्यादा रिटर्न लाके देगा। तो आप बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करोगे, नहीं तो आप बैंक के पास पैसा डिपॉजिट नहीं कराओगे। बैंक इज फोर्स्ड टू गिव यू मोर इंटरेस्ट रेट। So if the input cost of the bank increases, obviously bank will demand more interest rate from the corporates। जिसको भी वो लोन दे रहा है, आपको भी दे रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगा। तो किसी का भी इंटरेस्ट रेट देख लो सेम ही रहता है। सो यहां हमने देखा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इट मे राइज ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन। तो जैसे ही करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया में होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन महंगाई होगी, तो महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बैंक के भी, आरबीआई भी, आपका भी, सबका। आई होप अब तक समझ में आ रहा होगा ये 5-6 कंपोनेंट्स। अब 2-3 थोड़े से और कंसेप्चुअल हैं, फिर सिंपल हैं सबके सब। नेक्स्ट आता भाई एफडीआई या एफआईआई। ये भी इंटरेस्टिंग है, डिपेंड अपॉन इंडिया है कि बाहर है। ओवरऑल तो अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा। मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रखा है? बिकॉज अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडिया के केस में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स दे दिए, तब तो वो बढ़ जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा। तो स्टैंड अलोन में अगर देखें तो अनसर्टेन रहेगा, बिकॉज एफडीआई एंड एफआईआई आल्सो डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक फंडामेंटल। करेंसी कितनी भी डेप्रिशिएट हो जाए, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं तो कहां से एफडीआई एफआईआई आएगा? नहीं आएगा। जैसा हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन सारी कंट्रीज में बोलते हैं ना कि कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं होता? बिकॉज गवर्नेंस अच्छा नहीं है। सिमिलरली एफडीआई एफआईआई लाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसमें से एक है बस की डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बिकॉज तब एसेट्स थोड़े चीप बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो अनसर्टेन रहेगा। बट हाँ, अगर बाकी सब ठीक है, अगर ये लिख दे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, तो क्या होगा? तो अच्छा होगा, देन एफडीआई एफआईआई विल इंक्रीज। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है इससे, तो 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं बैठ पाएगा उस वाले पार्ट में। देन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब इंडिया के केस में नेगेटिव होगा, बाहर वाले केसेस में पॉजिटिव होगा। तो आप साथ में ब्रैकेट में लिखते रहना ये इंडिया में चल रहा है। यहां क्यों नहीं कह रहा था मैं कि ये डिक्रीज इंडिया में? बिकॉज एफडीआई एफआईआई आने के बहुत सारे अलग रीजन है इंडिया में भी। करेंसी डेप्रिशिएट ना भी हो तब भी आ सकता, और करेंसी डेप्रिशिएट हो भी जाए तब भी इंडिया में नहीं आए, बिकॉज अदर कंपोनेंट्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस वाले में तो इंडिया में कुछ फिक्स नहीं है। यहां वाले में लिविंग स्टैंडर्ड्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है अपन। जैसे ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है,
तो लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप और मैं जिसका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बास्केट जो है वो फूड है, तो पहले हम 10 रुपए का ब्रेड पैकेट परचेस कर रहे थे, अब 12 रुपए का कर रहे हैं। पहले 30 रुपए का हाफ लीटर मिल्क था, अब 40 रुपए का है, बट वी आर फोर्स्ड टू बाय इट बिकॉज मैक्सिमम स्पेंडिंग आपकी और हमारी है फूड कंजम्पशन के आइटम पे, तो यहां पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है नेगेटिव, अगेन ये इंडिया है, जैसे ही महंगाई आएगी तो इंपैक्ट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अब फिर सिंपल है, एक्सटर्नल डेट या फॉरेन बोरोइंग, उस पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, बिकॉज जब आप बोरो कर रहे हो, समझो उसको, अच्छा कंसेप्ट है, जब आपने बोरो किया, आज बोरो किया 2023 में, तो $1 था 50 रुपीज, बढ़िया, आपने डॉलर में बोरो किया, आरबीआई से कन्वर्ट कराया, 50 रुपए लिया और समथिंग समथिंग आपने उसको यूज किया। जब आप रिटर्न कर रहे हो तो ये पहुंच गया 60 रुपीज। जब आप आरबीआई से आप वापस डॉलर परचेज करोगे, क्योंकि आपने पैसा तो डॉलर में लिया है, मसाला बॉन्ड तो है नहीं जो लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इफ द बोरोइंग इज इन डॉलर, when you have to return the funds, now you need to buy dollar from the market. Now you can buy dollar from the market at the rate of 60 rupees. अब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, फिर कहीं जाके आप उसको रिटर्न कर पाओगे। तो रिटर्न टाइम पे तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ गया। अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ जा रहा है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सोचो ना, 20% तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया, 50 से था अब 60 हो गया। सो एक्सटर्नल डेट या फॉरेन बोरोइंग पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन और यही कॉर्पोरेट है हु हैव बोरोड फ्रॉम अब्रॉड। किंगफिशर एयरलाइंस का केस अपने को पता है, जब उसने बोरो किया था तो 50 रुपीज था, रिटर्न किया तो 65 था। लेकिन अगर ये जो लास्ट है मसाला बॉन्ड्स वाला, इंपैक्ट पे आएगा। अगर आपकी बोरोइंग मसाला में है ना, रुपी डिनोमिनेटेड में है, तब नेगेटिव नहीं होगा, तो वो याद रखेंगे। लास्ट, नेक्स्ट उसका लास्ट है। फिर कॉर्पोरेट्स हु हैव बोरोड फ्रॉम अब्रॉड, इस पे भी नेगेटिव है, सेम ही है ऊपर और नीचे वाला। फिर सॉवरेन रेटिंग, भाई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के केस में। तो क्यों पड़ेगा नेगेटिव? बिकॉज वही अपना करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। फिर इंडियन स्टूडेंट्स रीडिंग अब्रॉड, इसमें भी नेगेटिव है, बिकॉज अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पहले आप 50 रुपए में $1, बिकॉज आपकी स्पेंडिंग डॉलर में है। आप यूएसए में जाके स्पेंड करेंगे तो रुपी स्पेंड होगा नहीं, डॉलर होगा। वो डॉलर को आपने रुपी से परचेज किया है, तो पहले 50 रुपए में $1 मिलता था, अब 60 रुपीज में $1 मिल रहा है, वो जाके आप स्पेंड कर रहे हो। तो इसका मतलब इस पे भी नेगेटिव है। इंडियन टूरिस्ट अब्रॉड, इस पे भी नेगेटिव है। इस पे पॉजिटिव है डोमेस्टिक टूरिज्म पे। क्यों? क्योंकि पहले जो फॉरेनर आ रहा था वो $1 देता था और 50 रुपीज मिलते थे, अब उसको 60 रुपीज मिल रहे हैं, अब वो ज्यादा स्पेंड करेगा, तो डोमेस्टिक टूरिज्म इंक्रीज होगा। आई होप इससे ऊपर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछ सकता है या कहीं भी बन सकता है। अब आप इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, किसी भी टॉपिक, हम आपको और क्वेश्चंस देंगे जिसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे, बट मुझे नहीं लगता इससे ऊपर आपको कुछ भी करेंसी डेप्रिसिएशन में अब कोई भी कंसेप्ट आपको करना गया। इस वीडियो को वापस देखना, हम इसको वीडियो को कट करके और रिवीजन कार्ड वाले पेज पे भी डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। एक बार ये देखने के बाद आप ब्लैंक रिवीजन कार्ड की जो सीरीज है इसको डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इतना एफर्ट तो अपने को डालना ही पड़ेगा, और कोई चीज ना कल के लिए मत छोड़ना यार। अगर हम अभी से प्रीलिम्स के मोड में आ गए हैं, पूरा दिन आए हो, आधा दिन आए हो, जब भी आए हो, तो वो आज कंप्लीट करके सोना इसको। ये जो आप पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं, ये पेज आज आप फुल कंप्लीट करके सोएंगे। आज कल में जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये आपको आज फिनिश करना पड़ेगा। मैंने आपको कॉजेज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया है, मैंने आपको इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया है। ये दोनों, और अभी और पढ़ाऊंगा, ये दोनों आप, और ये तीनों, ये कम से कम ये तो 100% आज हम कंप्लीट करके सोएंगे।